Okay, so now in today's lecture, we are again going to solve problems of type 3. Type 3 problems are those problems where we use properties of Laplace transform, okay, to find the Laplace transform of a given function. So that is again what we are going to do today. In the previous lecture, we had seen multiplication by t property. Now today's lecture we are going to see the next property, that is division by t property. Okay, so let us see this. So to begin with, first of all, let's have a quick recall of what we did in the previous lecture. Previous lecture we saw how to find Laplace transform using multiplication by t property. Now what was this multiplication by t property? We use this to find Laplace transform of a function t multiplied with some function f of t. And what is the procedure? First we find Laplace transform of f of t, and suppose that comes out to be equal to some function phi of s, then Laplace transform of t into f of t is minus derivative with respect to s of phi of s. So this was the property we have seen. Suppose we have to find Laplace transform of t square into f of t, we use this property twice. We multiply with one t at a time. So that is what we have seen. Then here, since derivative is involved, we have seen certain derivative formulas, certain derivative types. First one we saw was derivative with respect to s of an expression of the form 1 upon denominator. So this is equal to minus 1 upon denominator square into derivative of the denominator. This is called as chain rule. Then next we saw derivative with respect to s of u upon v, that is numerator upon denominator. So this is denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator upon denominator square. This is also called as quotient rule. Next we saw derivative of some function of s, say u square. So this we refer to it as bracket. So derivative of some bracket square equal to 2 times the bracket into derivative of the bracket. This is also called as chain rule. Okay, so these are the few common types of derivatives that we came across. Next we saw that whenever in a particular problem we have got to use more than one property in the same problem, and out of those property, one of the property is say first shifting property, then we have seen that it is convenient to use this first shifting property at the end. So this would be the last property we would use. We would use the other properties first, and first shifting property we would use last. Okay, all right. Now let us start with the today's problems. So first of all, today let us see how to find Laplace transform of this function e raised to minus t into sin t upon t. Okay. Now first of all, whenever we see a problem where we have to find Laplace transform, we look at the operations. Here the operations are multiplication and division. Okay. So now here let us look at the key functions. Now when we look at this exponential function e raised to minus t, we know there is a property involved over here, that is first shifting property. Now when we see this upon t, that is division by t, then it is division by t property that we will see now. Whenever we divide by t, not by any other function, just by t, division by t, then we can use the property which is called as division by t property. Okay, so e raised to minus t is taken care by, multiplication by e raised to minus t is taken care by first shifting property. Division by t is taken care by division by t property. So here what remains is sin t. So here what we would do is, whichever terms are taken care by properties, ये e raised to minus t और ये t, तो first step इनको गायब करते हैं, तो जो बचता है उसका हम पहले Laplace transform find out करते. So here we begin with Laplace transform of sin t. Laplace transform of sin t standard formula है. So this comes out to be 1 upon s square plus 1 square, which is 1. Okay. Now next, अब हमें दो चीज करनी है.
we have to multiply by e raised to minus t, we have to divide by t. इसके लिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसके लिए डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी, दोनों में से पहला कौन सा करें? अब हमने डिसाइड किया है कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वी विल ऑलवेज यूज एट द लास्ट. ओके, तो इसका मतलब है ई रेज टू माइनस टी से हम लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब अब तुरंत हमें क्या करना है? वी हैव टू डिवाइड बाय टी, मतलब वी हैव टू यूज division by t property. Okay, so for that first of all let us see what this division by t property is. ये division by t property हम तब यूज करते हैं when we have to find Laplace transform of some function in t divided by t, that is t raised to 1. Okay, no other function of t, no other power of t, just upon t. So when we have to use this division by t property, we use, what we do here is, first of all we find Laplace transform of f of t. Now suppose this Laplace transform of f of t comes out to be phi of s. Okay, then when we divide this f of t by t, left hand side में जब ये f of t को t से divide करते हैं, what happens on the right hand side is this phi of s gets integrated from s to infinity with respect to s. Okay, तो यहाँ पर देखना है कि when we divide by t, division by t is associated with integration. Now this integration is happening in the s domain, that is the frequency domain. Frequency domain में integration का limits है s to infinity, limits याद रखना है. You will come across more than one integration in this topic. हर एक का limits different रहेगा. There are 3 types of integration in this topic. तीनों के लिमिट्स अलग है, तो वी डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड विद दोस लिमिट्स. अभी ये पहला इंटीग्रेशन हमारे, वी हैव कम अक्रॉस द फर्स्ट इंटीग्रेशन एंड दैट इज इंटीग्रेशन इन द एस डोमेन. तो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं वाया डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी इन द एस डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन, इसका लिमिट्स याद रखना है, इट इज फ्रॉम एस टू इंफिनिटी. ओके, सो दिस प्रॉपर्टी इज आर डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी. Now let us use this property. तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी Laplace transform of sin t है, तो इसको हम अब डिवाइड करेंगे by t. So we'll get Laplace transform of sin t upon t. तो यहाँ राइट हैंड साइड में क्या होगा? This right hand side will get integrated with respect to s, और इंटीग्रल का लिमिट क्या होगा? s to infinity. Okay, so this is what we have used here, division by t property. So the property is very simple to use. अब यहाँ पर ये इंटीग्रल जो है, ये इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करना है ये हमें समझना है. All right. Now when we are using this property, basically you will come across 3 types of integrals. Okay, so let me quickly revise with you what are the 3 types of integrals that we can come across. The first type is where you have integral of 1 upon the s प्लस ए भी आ सकता है, माइनस ए भी आ सकता है. ओके, ये साइन प्लस भी हो सकता है, माइनस ए भी हो सकता है. सो सपोज यू हैव इंटीग्रल 1 अपॉन एस प्लस ए विथ रिस्पेक्ट टू एस, इसका इंटीग्रल है log ऑफ s प्लस ए. सपोज यू हैव इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए विथ रिस्पेक्ट टू एस, इसका इंटीग्रल है log ऑफ s minus a. So this is the first type where numerator upon denominator है, numerator is 1, denominator में s वाला term है. Okay, so this is the first integral formula that we have to remember. Even if you have not remembered this till now, पहले किया है ये 12th में, याद नहीं है तो भी no issue, remember it now. Integral of 1 upon s plus a with respect to s is log of s plus a. Integral of 1 upon s minus a with respect to s is log of s minus a. तो ये first type है. Let's come to the second type. Second type integral is when you have, where you have integral of 1 upon s square plus a square with respect to s. ये कौन सा type है? Here we have got numerator upon denominator integration में. Now if you see numerator is 1 और डिनोमिनेटर में s स्क्वायर है, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, और दिस पर्टिकुलर टाइप s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ओके,
तो ये ऐसा है, तो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला. The value of this integral is 1 upon a into tan inverse of s upon a. Okay, so this is 1 upon a into tan inverse of s upon a. So this is the second type of integral. Now let's see the third type of integral. Third type of integral is again integral where you have numerator upon denominator. Numerator is s and denominator में s square plus a square है. ऐसा इंटीग्रल जब आता है, now here you will have to directly remember the value, but let me just recall कि ये इंटीग्रल हम कैसे इवेलुएट करते थे. तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर में एक 2 मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल एडजस्ट दैट 2 इन द डिनोमिनेटर, सो एक हाफ आएगा बाहर. तो वी गेट हाफ इंटू इंटीग्रल ऑफ 2s अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है, डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है दैट इज एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s प्लस 0 2s, ये न्यूमरेटर में आ जाता है. whenever derivative of denominator is in the numerator, the value of the integral is log of the denominator. Okay, so we are going to adjust it in that particular way. So integral of s upon s square plus a square ds, now we'll remember it as half log of s square plus a square. Okay, ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऑलमोस्ट है न्यूमरेटर में, सिर्फ वो 2 मिसिंग है, तो वो 2 को एडजस्ट करने के लिए वी गेट दिस हाफ. So these are the 3 types of integrals which we have to remember. ये 3 integral types याद है तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आराम से हो जाएंगे. ओके, नाउ लेट अस लुक एट दिस इंटीग्रल विच वी हैव इन हैंड. तो ये इंटीग्रल कौन से टाइप का है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है. यस परेश, सेकेंड टाइप. न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर है. सी इट इज द सेकेंड टाइप. ओके, तो ये सेकेंड टाइप है तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है. इसके लिए पहले a को पहचानना है. a कैसे पहचानेंगे, जो सेकेंड कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म हमारा a स्क्वायर है. मतलब इन दिस केस आर a स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब a विल बी इक्वल टू 1. So we use this formula with a equal to 1. तो यहाँ पर 1 upon a, that is 1 upon 1 into tan inverse of s upon a, tan inverse of s upon 1. ये मैंने बहुत elaborately किया है यहाँ पर, just to show you how we are using the formula. Otherwise 1 upon 1 we can do it mentally, we know it is 1, and tan inverse of s upon 1 is tan inverse of s. ये हम धीरे धीरे आगे यूज करेंगे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं. ओके, तो ये हमने फॉर्मूला यूज किया. ये वाला इंटीग्रल में लिमिट्स है, मतलब दिस आंसर हैज टू बी इवेलुएटेड फ्रॉम s टू इंफिनिटी. इसको आप ठीक से लिखते हैं, दिस इज tan इनवर्स ऑफ s टू बी इवेलुएटेड फ्रॉम s टू इंफिनिटी. अब इसका इवेलुएशन करते हैं. इवेलुएशन के लिए पहले हमें इंफिनिटी डालना है, s इक्वल टू इंफिनिटी माइनस, नेक्स्ट वी हैव टू पुट s इक्वल टू s. सो लेट अस सी व्हाट वी गेट. ये पहले हमने डाला s इक्वल टू इंफिनिटी, तो हमें मिला इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस, व्हेन वी पुट s इक्वल टू s वी जस्ट गेट tan इनवर्स ऑफ s. ओके, ये हमने सिर्फ लिमिट सब्स्टिट्यूट किया है. नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस फर्दर. tan inverse of infinity we know is pi by 2, so let us substitute. So this will be pi by 2 minus tan inverse of s. We can leave this as it is, but हमें ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पता है कि pi by 2 minus tan inverse s is actually cot inverse of s, तो we can use this formula. अगर आपने ये यूज नहीं किया, यहाँ पर छोड़ा, तो भी आंसर करेक्ट है, but this is the maximum simplification that is possible. So we have got Laplace transform of sin t upon t is cot inverse of s. हमारा solution हो गया है? No. एक और चीज बची है ना, e raised to minus t से मल्टीप्लाई करना है. Let us do that now. तो यहाँ पर Laplace transform of sin t upon t हमें मिला है cot inverse of s. अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम e raised to minus t से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलता है Laplace transform of e raised to minus t into sin t upon t. यहाँ e raised to minus t से मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में s के जगह पे क्या आएगा, s plus 1, right? So we get cot inverse of s plus 1. अब इसमें और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, so that is our final answer. Have we understood this?
I know integration थोड़ा भारी जाएगा, but then we will slow do it gradually. Okay, you all have understood it. Great. Okay. कभी कोई डाउट है तो प्लीज स्टॉप एंड आस्क, और अगर आपने चैट बॉक्स में कोई डाउट पूछा है एंड इफ आई हैव नॉट नोटिस्ड इट, आप माइक्रोफोन को अनम्यूट करके पूछ लेना, बिकॉज यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ये हमको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये समझ में आ जाता है, इट विल जस्ट टेक सम टाइम फॉर अस टू गेट यूज टू इट, ये हैबिट होना थोड़ा टाइम लगेगा। वंस यू सॉल्व 2 to 3 प्रॉब्लम्स, ये इंटीग्रेशन भी आराम से हैबिट हो जाएगा। ओके, all right, so this was one type of problem that we have seen. Let's move on to the next problem. Okay, now here the problems which are chosen are कि ये डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी में कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रल आपको आ सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर चूज किया है। ओके, तो नाउ हियर वी हैव टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 2t अपॉन टी। तो यहाँ पर ये जो अपॉन टी हम देख रहे हैं, अपॉन टी देखते ही कौन याद आता है, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। ओके, तो जहां भी प्रॉपर्टी आता है, जो भी टर्म देख के आपको प्रॉपर्टी याद आता है, उसको हम पहले गायब करते हैं, जो बचता है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं और बाद में वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं। करेक्ट, तो इस प्रॉब्लम में एक ही प्रॉपर्टी है, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी, जो टी को देखकर याद आता है, आई मीन ये जो अपॉन टी को देखकर याद आता है। तो टू बिगिन विथ ये अपॉन टी को हम गायब कर देंगे, तो कौन बचा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर 2t। तो सबसे पहले हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर 2t फाइंड आउट करना है। दिस इज ऑफ द फॉर्म साइन रेज टू सम पावर। ओके, तो ये अपना बेसिक फंक्शन है। अभी साइन रेज टू सम पावर का हमने प्रोसीजर देखा है। अगर ये पावर 2 या 3 है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, 4 या उसके ऊपर है तो अपना वो पूरा एक मेथड है जो हमने शुरू में देखा था। यहाँ पे 2 है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। विच फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2t। ओके, मतलब साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर अगर t है तो फॉर्मूला में देखो 1 माइनस कॉस 2t हो जाता है, यहाँ का जो एंगल है ये यहाँ डबल हो जाता है, अपॉन 2। इसी का एक पैरेलल फॉर्मूला भी है, I will just mention it, we are not using it in this problem, just mention कर रही हूँ। 2 cos square t is equal to 1 plus cos 2t। फर्क क्या है, साइन स्क्वायर टी आता है, साइन स्क्वायर टी आता है तो यहाँ माइनस है, cos स्क्वायर टी आता है तो साइन प्लस है। तो इसमें से हमें मिलता है cos स्क्वायर टी का फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2t अपॉन 2। ओके, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 2t है तो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। एंगल 2t है यहाँ पर, सो व्हेन वी यूज दिस फॉर्मूला दिस बिकम्स Laplace transform of 1 minus cos 4t upon 2। ओके, तो ये हमने फॉर्मूला डाल दिया। अब यहाँ पर ये अपॉन 2 कॉमन डिनोमिनेटर है एंड हियर वी सी वन सब्ट्रैक्शन, सो वी कैन सेपरेट दिस यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी में ये 2 बाहर आएगा, इट विल कम आउट एज हाफ इनटू Laplace transform of 1 minus Laplace transform of 4t। अब ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हमें पता है। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 4t, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हमें पता है। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट, सो वी गेट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर 2t इज इक्वल टू हाफ इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1 बाय s माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 4t is s upon s square plus 4 square which is 16। okay, so this is the Laplace transform we got। तो हमने Laplace transform of sin square 2t find out कर दिया है। अब इसको divide करना है t से, तो let us do that। when you divide here by t you get Laplace transform of sin square 2t upon t। right hand side में क्या होगा, you have to integrate with respect to s और लिमिट होगा s to infinity। करेक्ट, तो ये जो हाफ है कांस्टेंट, आई हैव रिमूव्ड इट आउटसाइड द इंटीग्रल, तो ये जो एंटायर फंक्शन है ये इंटीग्रेट होता है।
we get integral s to infinity 1 upon s minus s upon s square plus 16 with respect to s. ओके, अब इसको इंटीग्रेट करना है और इसको इंटीग्रेट करना है. हमने वो तीन टाइप देखे थे. लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन, 1 अपॉन एस. ये पहला टाइप है. 1 अपॉन एस प्लस जीरो ले लो या 1 अपॉन एस माइनस जीरो ले लो. ओके, दैट फॉर्म इट इज. तो इसका इंटीग्रल आएगा log s. ये जो है सेकेंड वाला टर्म, ये थर्ड टाइप का है. ओके, दैट इज इंटीग्रल ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. So the value of that integral is half log of s square plus a square. So let us substitute the formula. ये half यहाँ वैसा का वैसा आया. 1 upon s का इंटीग्रल है log s माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 16. ये थर्ड टाइप का है. न्यूमरेटर में s, डिनोमिनेटर में स्क्वायर टर्म. तो इसका इंटीग्रल आता है हाफ इंटू log of the denominator. So that is half into log of s square plus 16. यहाँ पर integration is with limit. So this entire thing has to be evaluated from s to infinity. यहाँ तक समझ में आया हमने इंटीग्रेशन कैसे किया है? कुछ कंफ्यूजन है? किसी को ये वाला यहाँ तक का कोई भी स्टेप बाउंसर गया है? ओके, सो फार फाइन ना. ओके, यहाँ पर है ना थोड़ा आगे का प्रोसीजर्स थोड़ा डेलिकेट है, तो इसके लिए आई विल गो लिटिल स्लो. ओके, सो या स्टे विथ मी. अब इसके बाद ये देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, अभी इंटीग्रेशन कर दिया है. इंटीग्रेशन हो गया है. नेक्स्ट हमें क्या करना है? लिमिट डालना है. तो सबसे पहले हमें लिमिट डालना है इन्फिनिटी. तो यहाँ पर s इक्वल टू इन्फिनिटी डालेंगे अगर हम, तो यहाँ पर मिलेगा log इन्फिनिटी माइनस हाफ इंटू log of infinity plus 16 which is again infinity. Okay, तो but we know that log of infinity is infinity. तो ये अगर आपने यहाँ पर infinity डाला, log infinity बन गया infinity माइनस ये भी log infinity है which is again infinity. तो ये है infinity माइनस infinity फॉर्म. ये infinity माइनस infinity फॉर्म किसी को याद आ रहा है? कहीं तो देखा था ये सेमेस्टर 1 में इनडिटर्मिनेट फॉर्म में देखा था, या 12th में आपने लोपितास रूल, हाँ यस, लिमिट्स चैप्टर में है ये. ओके, एनीवे द पॉइंट इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है. अगर फॉर्म आता है आपका तो हम डायरेक्टली इसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते. ओके, यहाँ पर लिमिट डालने से पहले थोड़ा हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा. डायरेक्ट हम इसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते. ओके, तो yes Anupam, Lopita's rule correct. But then here I am not going to use Lopita's rule in detail, तो वो solution बहुत lengthy हो जाएगा. Okay, I am just going to tell you how we are using Lopita's rule, but उसका key step क्या है वो मैं बता रही हूँ. ठीक है, तो अगर ऐसे आता है infinity माइनस infinity, तो लिमिट सब्सटीट्यूट करने से पहले ये अंदर के पार्ट को आपको सिंप्लीफाई करना है. यहाँ पर क्या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? log माइनस log, तो कौन सा फॉर्मूला याद आता है? log a माइनस log b इज log ऑफ a अपॉन b. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. लेकिन ये फॉर्मूला यूज करना है, यू नीड log a माइनस log b. यहाँ पर हमारे पास कैसा है? log s है जिसका कोएफिशिएंट 1 है. यहाँ पर एक्सक्यूज मी, सॉरी, यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है, जबकि इस log फंक्शन के साथ हाफ मल्टीप्लाइड है. तो यहाँ पर हम ये डायरेक्टली अब यूज नहीं कर सकते, तो हमें पहला ये कोएफिशिएंट्स को सेम करना है. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, ये log s के यहाँ पर हाफ है, तो आई एम गोइंग टू ब्रिंग हाफ हियर ऑल्सो. तो वी गेट दिस हाफ. यहाँ पर सी आई हैव मल्टीप्लाइड बाय हाफ, बट आई कांट जस्ट मल्टीप्लाई बाय हाफ. नो, ये हाफ से मल्टीप्लाई किया मतलब ये 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर एक 2 से मल्टीप्लाई भी करना है. तो हियर वी गेट 1/2 इंटू 2 log s माइनस 1/2 log of s square plus 16. This is to be evaluated from s to infinity. Okay.
अब हमें दोनों का कोएफिशिएंट सेम चाहिए, मतलब यहाँ हाफ और यहाँ हाफ चाहिए, ताकि हम वो हाफ को कॉमन निकाल सके एंड वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो यहाँ हाफ और यहाँ हाफ तो है ही, प्लस यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा 2 है, तो ये 2 को हम ऊपर ले सकते हैं यूजिंग लॉगरिथम का फॉर्मूला। ओके, so that is what we are going to do that. Okay, before going to that step, there is one more thing you could have done, and that is यहाँ पर directly ये half को आप यहाँ पर ले सकते थे. Why I didn't do that is, ये half को यहाँ पर ले ले तो वो root होता है. Okay, you'll get log of s square plus 16 raised to half, which is log of root of s square plus 16. तो I don't want to involve that square root, वो बाद में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा इनकन्वीनियंस क्रिएट कर सकता है. सो दैट इज वाई आई हैव मेड दिस कोएफिशिएंट एज 1/2. ओके, ऑलराइट. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये 2 को ऊपर लेना है. कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, m इंटू लॉग ऑफ a इज लॉग ऑफ a रेज टू m. तो ये 2 ऊपर चला जाएगा एंड ये हाफ कॉमन आएगा, तो यहाँ ऑलरेडी हाफ है, ये हाफ को कॉमन निकाला तो वी गेट 1/4 इंटू, ये बन जाएगा log of s रेज टू 2, दैट इज log of s स्क्वायर माइनस log of s स्क्वायर प्लस 16, ये हाफ बाहर चला गया. दिस इज इवेल्युएटेड फ्रॉम s टू इंफिनिटी. ओके, ये हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हम log a माइनस log b का फॉर्मूला यूज कर सके, and that formula is log of a upon b. So this will be 1/4 into log of s square upon s square plus 16 evaluated from s to infinity. Okay. Now we have simplified this. अब इसमें हम infinity substitute कर सकते हैं. Okay. So let us see what is the value of this log function at infinity. Now this is something which you are supposed to do directly in the solution of this problem. लेकिन इसमें actually होता क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगी. Okay, what we are trying to do is we are trying to find out what is the value of log of s square upon s square plus 16 at, as you put x equal to infinity, that is as s tends to infinity. तो यहाँ पर एज ऑल ऑफ यू ऑल हैव सेड लोपितास रूल यूज कर सकते हैं, तो लोपितास रूल ही भी यूज कर सकते हैं, बट आई एम शोइंग यू 12th का टेक्निक हमने जो किया था, विच इज इनडायरेक्टली लोपितास रूल, बट यहाँ पर हम एक्सप्लिसिटली मैं लोपितास रूल नहीं यूज कर रही हूँ, 12th का टेक्निक यूज कर रही हूँ. 12th का टेक्निक क्या है, व्हेन यू हैव लॉग ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ओके, और उसमें अगर आपको इन्फिनिटी डालना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है s का, उसको डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. हाईएस्ट पावर क्या है, s स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में s स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 मिला, डिनोमिनेटर को s स्क्वायर से डिवाइड किया तो s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर यहाँ पर 1 मिला, 16 अपॉन s स्क्वायर वी गेट हियर प्लस 16 अपॉन s स्क्वायर. सो the value of this expression at infinity is equal to the value of this expression as s tends to infinity. अब यहाँ पर you will put s equal to infinity, यहाँ पर अगर आपने s equal to infinity डाला, here it becomes 1 upon infinity. We know 1 upon infinity is 0, तो ये क्या बनेगा, log of 1 upon 1 plus 0, ये हमने infinity डाल दिया, तो 1 upon infinity is 0. So we get log of 1 upon 1 plus 0. Now this 1 upon 1 plus 0 is 1. So this gives us log 1, and log 1 is 0. Okay. So this is the working behind this. But अब हमें Laplace transform के problems में इतना सारा working नहीं करना है. We have to directly remember that log of numerator upon denominator है, जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर पावर सेम है, न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर इज स्क्वायर, डिनोमिनेटर का भी हाईएस्ट पावर इज स्क्वायर, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू इवेल्युएट दिस एज एट इन्फिनिटी, तो इसका आंसर 0 आएगा. ये अब आपको डायरेक्ट याद रखना है. ओके, एंड उसका रीजन ये है. यहाँ तक ठीक है? एनीवन हैज एनी डिफिकल्टी टिल हियर? कहाँ से रिपीट करूं? हाँ, ये वैल्यू जो निकाला है ये. ओके,
यहाँ पर ये हमने log a माइनस log b का फॉर्मूला डाल के log ऑफ a अपॉन b के फॉर्म में लाया है. ओके, तो अब ये सिंप्लीफाई हो गया. अब हमें लिमिट सब्सटीट्यूट करना है. अब जब लिमिट सब्सटीट्यूट करना है, पहला लिमिट जो हम सब्सटीट्यूट करेंगे ये होगा इन्फिनिटी. यहाँ पर अगर आपने इन्फिनिटी डायरेक्टली सब्सटीट्यूट किया, इट बिकम्स log ऑफ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी. ये तो क्या है हमें पता नहीं है. ओके, तो ऐसा जब एक एक्सप्रेशन रहता है log ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जहां न्यूमरेटर का पावर, यहाँ पर न्यूमरेटर का पावर क्या है, स्क्वायर, डिनोमिनेटर का पावर स्क्वायर, दोनों पावर सेम है, तो इसका वैल्यू देखो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. उसका एक सिंप्लीफिकेशन है. वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दैट पावर. मतलब यहाँ पर एस स्क्वायर है, अगर एस क्यूब होता न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एस क्यूब से डिवाइड करते. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर s होता, जस्ट s raised to 1, we would have divided numerator and denominator by s. ओके, s का जो भी हाईएस्ट पावर है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को उस पावर से डिवाइड करोगे, s raised to that power. यहाँ पर s square, यहाँ पर भी s square. So highest power of s we have here is square. So we divide numerator and denominator by s square. न्यूमरेटर को s square से डिवाइड किया तो 1 मिला, s square अपॉन s square is 1. डिनोमिनेटर को s square से डिवाइड किया तो यहाँ क्या मिला, यहाँ पर s square अपॉन s square is 1 प्लस 16 अपॉन s square मिला. ओके, तो वी गेट log ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 16 अपॉन s स्क्वायर. और इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है इन्फिनिटी पे. तो अब ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम s इक्वल टू इन्फिनिटी डालते हैं. अगर यहाँ पर हमने s इक्वल टू इन्फिनिटी डाला, दिस इज 16 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर. Now 1 upon this is 16 into 1 upon infinity, correct? This 16 upon infinity square can be seen as 16 into 1 upon infinity square. Infinity square तो फिर से infinity ही होगा. So this becomes 16 into 1 upon infinity. 1 upon infinity is 0. तो ये बन जाएगा 16 into 0. 16 into 0 is 0. So we get log of 1 upon 1 plus 0. अब ये 1 अपॉन 1 प्लस 0 इज 1, तो log 1 इज 0. इज दिस ओके? ओके, अब इसमें हमें, दिस आई हैव गिवन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. एज आई टोल्ड यू, ये प्रॉब्लम में अब हमें बाय डिफॉल्ट क्या याद रखना है, अगर आपके पास log ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर में s का जो पावर है, हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ा पावर, और डिनोमिनेटर में s का जो सबसे बड़ा पावर है, ये दोनों सेम है. लाइक हियर s रेज टू 2 है, डिनोमिनेटर में s रेज टू 2 है, और इसमें अगर आप s इन्फिनिटी डालते हैं तो इसका वैल्यू 0 आता है. ये आपको डायरेक्ट याद रखना है. ओके, नाउ हियर I have just let us substitute this. So we get 1 by 4. यहाँ पर मैंने log 1 लिखा है, ये अब because we get this log 1. ये log 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, you can directly put 0. Okay? Eventually आगे हम वो भी करेंगे. तो ये log 1 है, तो log 1 मिलता है जब हम infinity डालते हैं, minus when you put s equal to s, we get back the same expression. So we get log 1 minus log of s square upon s square plus 16. We know that log 1 is 0. So यहाँ मिलता है 1 by 4, log 1 is 0 minus log of s upon s square plus 16. Okay. Now how to handle this minus log of s square upon s square plus 16? We have this formula in log, minus log of x upon y है suppose. Okay. और ये माइनस को अगर आपको अंदर लेना है तो ये जो फ्रैक्शन है ये रिवर्स हो जाएगा, आई मीन इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर गोज टू डिनोमिनेटर. सो माइनस लॉग ऑफ x अपॉन y इज इक्वल टू लॉग ऑफ y अपॉन x. ये हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो वी गेट 1 by 4. आंसर विल बी लॉग दिस माइनस, आई हैव एब्जॉर्ब्ड इट इनसाइड, तो s स्क्वायर प्लस 16 ऊपर आ गया,
एस स्क्वायर नीचे आ गया, सो वी गेट 1/4 log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एस स्क्वायर, और ये अपना फाइनल आंसर है। इसके आगे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। चेक इफ वी हैव अंडरस्टूड दिस। ये थोड़ा आई थिंक डाइजेस्ट करने के लिए डिफिकल्ट था, सो वी विल रिवाइज दिस, सेम टाइप का प्रॉब्लम और लेंगे। बट सो फर हैव वी अंडरस्टूड दिस प्रोसीजर, क्या क्या किया है, समझ में आया है? है ना, सब है ना? एम आई ऑडिबल? या ओके, यहाँ तक समझ में आया है। ओके, सो दिस वाज द सेकेंड प्रॉब्लम वी हैव सीन। ये प्रॉब्लम्स थोड़े इंटीग्रेशन की वजह से भारी हो जाते हैं, और एक रीजन इनका भारी होने का क्या है, बिकॉज इन वन पर्टिकुलर स्टेप वी आर यूजिंग टू मेनी कॉन्सेप्ट्स। ओके, बट देन आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट सो फार, और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम रिपीट करेंगे तो यू विल गेट यूज टू इट। ओके, सिर्फ आदत होने की बात है। ऑल राइट, लेट अस लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। यहाँ पर देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वी हैव टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन टी इंटू कॉस ऑफ ए टी माइनस साइन कॉस ऑफ बी टी, सॉरी 1 अपॉन टी कॉस ऑफ ए टी माइनस कॉस ऑफ बी टी। तो हमें ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। सबसे पहले दिस 1 इंटू कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी विल बी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी अपॉन टी। ओके, अब ये जब अपॉन टी दैट इज डिवीजन बाय टी देखते हैं तो हमें याद आता है डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। ऑलराइट, तो और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये अपॉन टी को गायब करना है, जो बचा है उसका हम पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं। दैट इज वी विल फर्स्ट फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ए टी माइनस cos बी टी। यहाँ पर हमें क्या ऑपरेशन दिख रहा है, सब्ट्रैक्शन। तो ये सब्ट्रैक्शन को हम सेपरेट करेंगे यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो दिस विल बिकम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ए टी माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos बी टी। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ए टी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका आंसर हमें पता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos बी टी, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका भी आंसर हमें पता है। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। Laplace transform of cos at will be s upon s square plus a square minus Laplace transform of cos bt is s upon s square plus b square. Okay, तो ये हमें मिला Laplace transform of cos at minus cos bt is s upon s square plus a square minus s upon s square plus b square. अब यहाँ पर हमें डिवाइड बाय टी करना है। ओके, तो यहाँ पर डिवाइड बाय टी दैट इज डिविजन बाय टी प्रॉपर्टी यूज किया। राइट हैंड साइड में क्या होगा, दिस एंटायर थिंग विल गेट इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू एस, और इंटीग्रेशन का लिमिट होगा एस टू इन्फिनिटी। सो वी गेट इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो चलो अब ये इंटीग्रेशन करते हैं। ये इंटीग्रेशन कौन सा टाइप का है, न्यूमरेटर में s है, डिनोमिनेटर में s स्क्वायर है। इज इट, हमने 3 टाइप देखे थे, टाइप 1 है, टाइप 2 है या टाइप 3 है? कौन सा टाइप है? श्योर टाइप 3 है? यस, वेरी गुड, टाइप 3 है। और अगर टाइप 3 इंटीग्रल है तो उसका आंसर है हाफ इंटू लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर, करेक्ट, याद है हमें, राइट? तो इसका आंसर रहेगा हाफ इंटू लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका आंसर रहेगा हाफ इंटू लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन देखो कितना आसान है, लेट्स सब्स्टिट्यूट। तो ये इंटीग्रल है हाफ इंटू लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस, और ये टर्म का इंटीग्रल है हाफ इंटू लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस हैज टू बी इवेलुएटेड फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। चलो इंटीग्रेशन तो हो गया, अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। पर यहाँ पर अगर आपने लिमिट सब्स्टिट्यूट किया s इक्वल टू इन्फिनिटी, यू विल गेट log इन्फिनिटी। log इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, माइनस यहाँ पर भी log इन्फिनिटी आएगा विच इज इन्फिनिटी। वी नो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, करेक्ट?
तो यहाँ पर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, ये दो लॉग फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है? log a माइनस log b का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये जो कोएफिशिएंट है हाफ, इसको हम कॉमन निकालते हैं, तो विल गेट हाफ कॉमन। हाफ कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा? log of s square plus a square minus log of s square plus b square, which I have directly written it as log of s square plus a square upon s square plus b square, and this has to be evaluated from s to infinity. ओके तो यहाँ पर ये ठीक है, राइट? हाफ कॉमन निकाला, log a माइनस log b का फॉर्मूला यूज किया। ऑल राइट, लेट्स प्रोसीड अहेड। अब इसमें हमें इन्फिनिटी डालना है। नाउ लुक एट दिस एक्सप्रेशन, log ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में s का सबसे बड़ा पावर 2 है, हाईएस्ट पावर ऑफ s इज 2। डिनोमिनेटर में s का सबसे हाईएस्ट पावर है 2। तो व्हेन यू हैव log ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दोनों का पावर सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, एट इंफिनिटी इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा? 0, isn't it? इनफैक्ट वो log 1 आता है, log 1 आता है, इसके लिए 0 आता है, तो वी कैन डायरेक्टली पुट दिस एज log 1। तो यहाँ पर एज आई हैव टोल्ड यू log 1 भी डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम 0 भी डाल सकते हैं। सो दिस विल बी 0 माइनस, व्हेन वी पुट s इक्वल टू s, तो ये सेम एक्सप्रेशन फिर से आता है। सो वी गेट log ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसमें हम log 1 इक्वल टू 0 डालते हैं, तो वी गेट दिस हाफ इंटू 0 माइनस log ऑफ s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये माइनस का क्या करेंगे? अब इसको अंदर लेंगे। अगर ये माइनस को log के अंदर लेते हैं, दिस बिकम्स रिवर्स, दिस goes in the numerator and this comes in the denominator. So we get half log of s square plus b square upon s square plus a square, and this is the final answer. Did we understand this? ये अब थोड़ा ज्यादा आसान लगा? ओके तो यहाँ तक जो है यही समझना है। यू विल सी प्रॉब्लम्स में इसी तरह का सिंप्लीफिकेशन आएगा। ओके, all right, now we move on to the next problem. That is finding Laplace transform of 1 minus cos t upon t square. यहाँ पर क्या डिफरेंट है? वी आर डिवाइडिंग बाय t स्क्वेयर, t स्क्वेयर से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब डिविजन बाय t प्रॉपर्टी कितनी बार यूज करना है? 2 बार। यस, 2 टाइम्स वी हैव टू यूज। ओके, तो ये 2 टाइम्स, show last slide again for a second, yeah, 1 minute। ये वाला स्लाइड मंदार, ये वाला स्लाइड। ओके, एनी डाउट इन दिस? डन ना? अच्छा, एम आई गोइंग वेरी फास्ट? के पेस इज ओके? डू यू वांट मी टू गो मोर स्लो? अपना स्पीड ठीक है? ओके है ना? ओके, अच्छा अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। ऑल राइट, so we are finding here Laplace transform of 1 minus cos t upon t square, as we saw divide by t square है, मतलब 2t से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे division by t property 2 times, डिविजन बाय टी प्रॉपर्टी 2 टाइम्स, मतलब इंटीग्रेशन 2 टाइम्स। तो लेट अस सी, यहाँ पर देखना वही है कि इंटीग्रेशन कैसे करना है। ओके, अदरवाइज डिविजन बाय टी प्रॉपर्टी तो यूज करना हमें आता है, वो इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करना है, लेट अस सी दैट। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, ये डिविजन बाय टी प्रॉपर्टी, टी स्क्वायर को देख के याद आता है, इसको गायब कर दो, बचा कौन? 1 माइनस कॉस टी। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस टी। यहाँ पर ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे? लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो दिस बिकम्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी। अब ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हमें पता है स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो इसका आंसर हम सब्सटीट्यूट करेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी का भी हमें आंसर पता है, तो ये भी सब्सटीट्यूट करेंगे। So let's see what we get. Laplace transform of 1 is 1 by s
minus Laplace transform of cos t is s upon s square plus 1 square which is 1. तो वो भी हमने substitute कर दिया. Okay. So we have got Laplace transform of 1 minus cos t is 1 upon s minus s upon s square plus 1. अब इसको डिवाइड बाई टी करेंगे, यहाँ पे 2 बार डिवाइड बाई टी करना है, तो हम वी विल डू इट वन एट अ टाइम. पहले एक टी से डिवाइड करते हैं. सो वी गेट लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या होगा, इंटीग्रेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रॉम एस टू इंफिनिटी. ओके, सो हियर we get integral s to infinity 1 upon s minus s upon s square plus 1 with respect to s. Let us see what we have inside this integral. 1 minute. Students, hold on. Hello, good morning, sir. Sir, I am taking a lecture now. I mean at home. Yes, sir. I'm in the middle of a lecture. Yes, sir.